بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ یہ کہانی سرگودا کے ایک پرانے گاؤں کی ہے جہاں لوگ پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام پروین تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، وہ پورا سال لحاف سیتی اور جب ٹھنڈا موسم قریب ہوتا تو انہیں اچھے دام بیچ کر پیسے کماتی۔ اس نے نوشی کو اچھی تعلیم دلائی، اس کی ہر ضرورت کا ہمیشہ خیال رکھا۔ اسے زندگی میں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ نوشی کی تعلیم مکمل ہوئی تو پروین کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ اماں، جب نصیب میں ہوگی شادی ہو جائے گی، کیوں ہر وقت پریشان رہتی ہے؟ ایک روز نوشی نے ماں کو سوچوں میں گم اور پریشان دیکھ کر ٹوک ہی دیا۔ تیری ہم عمر لڑکیاں دو بچوں کی مائیں بن گئیں، کیسے فکر نہ کروں؟ پروین ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اسی وقت مائی سغرا گھر میں داخل ہوئی۔ مائی سغرا اس علاقے کی پرانی رشتے والی خالہ تھی۔ پچھلے 25 سال سے وہ یہی کام کر رہے تھے۔ مائی سغرا کے جتن سے آدھے گاؤں کے لوگوں کا بیڑا پار ہوا تھا۔ اب تک وہ سینکڑوں لوگوں کی شادیاں کروا چکی تھی۔ گاؤں کے سادہ لوگوں میں طلاق کا رجحان بہت کم ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تو طلاق ہونا گناہ سمجھا جاتا تھا اور طلاق کا سوگ موت کی طرح منایا جاتا تھا۔ خیر، سغرا کی آمد پر پروین کے دل میں امید کا دیا روشن ہو جاتا۔ اس وقت بھی وہ مسکرا کر امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سغرا کی مسکراہٹ کوئی اور ہی داستان سنا رہی تھی۔ پروین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کچھ پوچھا تو وہ گردن ہلا کر ایک اچھی خبر ہونے کا اشارہ دینے لگی۔ پروین جانتی تھی کہ نوشی کی موجودگی میں سغرا بتانے سے گریز کر رہی ہے، سو بہانے سے اسے وہاں سے اٹھا دیا۔ نوشی بیٹی، خالہ کے لیے اور میرے لیے 2 کپ چائے کے تو بنا کر لا، سچ بڑی طلب ہو رہی ہے۔ نوشی فرما برداری سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تو پروین بے چینی سے بولی، کیا خبر لائی ہو خالہ سغرا؟ اپنی نوشی کے لیے رشتہ دیکھ کر آئی ہوں۔ سغرا بڑی پرجوش ہو کر بولی، وہ تو مجھے بھی اندازہ ہے، مگر یہ بتاؤ کہ رشتہ ہے کیسا؟ کہیں پہلے کی طرح اچھو نائی کے نکمے بیٹے کا تو نہیں لائی؟ پروین کو سغرا کی پچھلی کارکردگی پسند نہیں آئی تھی، سو ناک چڑھا کر بولی، لو کر لو گل۔ خالہ سغرا سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بھول گئی، تیرا رشتہ بھی تو میں نے کرایا تھا۔ خالہ کو بڑی پرانی بات یاد آئی۔ ہاں، 2 سال بعد ہی بیوگی ہو گئی تھی۔ پروین منہ بسور کر بولی، رشتہ کرانے کے ساتھ زندگی کی گارنٹی کون دیتا ہے؟ باولی نہ ہو تو۔ خالہ ہنستے ہوئے بولی، اچھا رشتے کا بتاؤ، لڑکا خوبصورت پڑھا لکھا اور امیر تو ہے نا؟ پروین نے بے چینی سے کہا تو خالہ بڑے سمجھانے والے انداز میں بولی، دیکھ پروین، تو ہے میری بیٹی کے جیسی، غلط بات نہیں سمجھاؤں گی تجھے، وہی مشورہ دوں گی جو مجھے بہتر لگے گا۔ آخر یہ بال میں نے دھوپ میں نہیں سفید کیے، لوگ یوں ہی تو مجھ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرتے۔ ہاں جانتی ہوں، تبھی تو تجھے یہ کام سونپا ہے۔ پروین نے اعتراف کیا تو خالہ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ لڑکے کا اپنا رکشہ ہے اور لڑکا بینک میں چوکیدار ہے، اچھی لگی بندی تنخواہ ہے۔ پروین کی تو مانو دل کی مراد پوری ہو رہی تھی، فوراً بول پڑی، اور خوبصورت بھی ہے، مگر ایک ذرا سا مسئلہ ہے، اگر برا نہ مانے تو۔ خالہ نے سوالیہ نظروں سے پروین کی طرف دیکھ کر کہا تو پروین حیرت سے دیکھنے لگی۔ لڑکے کی ایک شادی ٹوٹ چکی ہے، بس ذرا سا مسئلہ ہے، ورنہ لوگ بڑے شریف ہیں۔ سغرا نے بات ختم نہیں کی، سمجھو پروین کے غصے کو ہوا دے دی۔ پہلے ہی مجھے پتا تھا میری پھول جیسی بیٹی کے لیے تمہارے پاس ایسے دنیا جہاں کے بیکار رشتے موجود ہیں۔ ارے خود تو تم نے اپنی 3 بیٹیاں شہر بیاہ دی، تینوں شکل کی نہ صورت کی، مگر پھر بھی عیش کر رہی ہیں عیش۔ ایک میری پھول سی بیٹی کے لیے وہی چن چن کر عجیب و غریب رشتے لے کر آتی ہو۔ پروین کہنے پر آئی تو رکی نہیں۔ سغرا کانوں کو ہاتھ لگاتی اٹھ کھڑی ہوئی، توبہ، نہ بڑے کا لحاظ نہ چھوٹے کا۔ بی اپنی بٹیا کی عمر بھی چیک کر لے، پورے گاؤں میں اس کی عمر کی ایک بھی لڑکی کنواری نہیں ملے گی۔ 4 کلاسیں کیا پڑھا لی، بیٹی آسمان سے اتری پری دکھنے لگی ہے۔ خود ہی ڈھونڈ اس مہارانی کے لیے کوئی راجا، یا ایسا کرو دونوں ماں بیٹیاں گھر بیٹھ کر کسی شہزادے کا انتظار کرو جو بڑی شان سے گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا اور اسے بیاہ کر لے جائے گا۔ مجھے کون سا تم نے بات پکی ہونے پر لاکھوں کی مالیت کا سونا یا 10 جوڑے چڑھانے تھے؟ یتیم بچی سمجھ کرنے کی کر رہی تھی جو گلے پڑ گئی۔ سچ ہے بھائی، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ آگے بھی پھر خالہ سغرا تھی جس نے گھاٹ گھاٹ نگر کا پانی پی رکھا تھا۔ 2 سن کر تقریر کے انداز میں 4 سنا کر چلی گئی۔
नौशी चाय की ट्रे पकड़े हैरान होती दोनों को लड़ता देखे रह गई। चलो चाय तो बची, दो दिल में सोचती हुई चाय के कप मज़े से उठाकर पीने लगी। माँ को छेड़ने का मतलब था उसके गुस्से का रुख अपनी तरफ करना। परवीन ने अपनी चाय ख़त्म की। एक यही चीज़ थी जो उसके बीपी को नॉर्मल रख सकती थी। जब वो चाय पी चुकी तो नौशी ने डरते डरते पूछ ही लिया, इस बार क्या हुआ अम्मा? होना क्या था, दुनिया भर के बेकार रिश्ते सुगरा ने हमारे लिए संभाल रखे, कुछ बोलो तो बुरा लग जाता है। परवीन ने मुंह बनाया। अम्मा गलत नहीं कर दिया खाला सुगरा को बातें सुनाकर? नौशी ने आहिस्ता से कहा तो परवीन सोच में पड़ गई। बात तो ठीक थी, सुगरा ने जाकर 10 घरों में अपने पास से 10 बातें जोड़कर फैलानी थी। तो फिक्र मत कर, 2 दिन बाद खुद ही आ जाएगी सब भुलाकर, परवीन ने उसे बताया और साथ खुद को तसल्ली भी दी। रात को परवीन बिस्तर पर लेटी तो बेटी की उम्मीद भरी नजरें उसकी आंखों में घूम गई। किस तरह सुगरा के आने पर उसकी आंखों में चमक पैदा होती थी वो अच्छी तरह से जानती थी, मगर बेटी का दुल्हन बनने का अरमान पूरा करने के लिए वो किसी भी अरे गैरे का रिश्ता कबूल नहीं करना चाहती थी। अभी 2 दिन पहले ही नौशी की दोस्त की छोटी बहन के घर बच्चे की पैदाइश की मिठाई आई थी, जिसे अलग से नीचे उतारना तो बहुत दूर की बात। परवीन का देख कर ही हाल बुरा हो गया। उसका बस चलता तो अपनी पसंद का दामाद ढूंढकर 1 दिन के अंदर नौशी को दुल्हन बना देती, मगर ये सब किस्मत के खेल होते हैं, इंसान की अपनी मर्जी नहीं चलती। काश उसका बाप जिंदा होता तो शायद आज मैं इतनी परेशान न होती। इतने साल मेहनत करके लाखों रुपए मैंने इसलिए तो जमा नहीं किए थे कि उसका आला तरीन जहेज बनाकर किसी भी आम इंसान से ब्याह दूं। थोड़ी देर ही सही, मगर मेरी शहजादी की शादी जब होगी तो दुनिया देखेगी। परवीन यही बातें सोचती नींद की वादी में उतर गई। रात जब अपने जोबन पर होती तो स्याह रंगत, दरमियाने कद और सफ़ेद बालों वाला वो बूढ़ा जिन इंसानी बस्ती में दाखिल होता था। उसके चलने का अंदाज लड़खड़ाया होता। कोई पहली नज़र में ही देखकर उसे दीवाना तसव्वुर कर सकता था। वो इंसानों के हालात से अच्छी तरह वाकिफ था और सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद के लिए निकलता जो किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते थे और अपनी मेहनत पर यकीन रखते हैं। परवीन का शुमार भी ऐसे ही मेहनती लोगों में होता था। परवीन को गहरी नींद में दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसे अपना वहम लगा, मगर जब मुसलसल आवाज़ सुनाई देती रही तो वो उठकर बैठ गई। लाख बाहिम्मत और मेहनती से, मगर थी तो एक औरत थी, नाजुक दिल और अंदर से सहमी हुई। उसने एक नज़र पास लेटी नौशी पर डाली जो ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही थी, और फिर ये सोचकर खुद भी आंखें बंद करके लेट गई कि जो भी होगा खुद ही वापस चला जाएगा। मगर आने वाला जैसे वापस ना जाने की कसम खाकर आया था। हो सकता है कि मोहल्ले में किसी को मदद की ज़रूरत हो। जहन में ये सोच आई तो वो मज़ीद बेहिस बनने की कोशिश तर्क करके बिस्तर से उठ खड़ी हुई। कौन? उसने दिल में डरते डरते मगर बज़ाहिर तेज़ आवाज़ में कहा। एक भारी आवाज़ उसे जवाब में सुनाई दी। दरवाज़ा खोलो परवीन, मैं तुमसे ज़रूरी काम से आया हूँ। परवीन एक अजनबी की आवाज़ और अपना नाम सुनकर हैरान परेशान रह गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने आखिरकार हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया। अपने सामने उस अजीब आदमी को देखकर तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसने पहले कभी इस आदमी को नहीं देखा था। यह कुछ रकम है, मेरे लिए थोड़ी सी है, मगर इसे थाम कर तुम सारी उम्र के लिए लिहाफ सीने की मुशक्क़त से बच जाओगी और एक अच्छी ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। इससे पहले कि वो कुछ बोलती वो मज़ीद बोला, मेरा ताल्लुक़ जिन्नात से है। मैं कई सालों से ऐसे मेहनती लोगों की तलाश में हूँ जो किसी के सामने हाथ फैलाने से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करती। तुम अभी और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो। शर्म नहीं आई रात के इस पहर 2 अकेली औरतों के घर का दरवाज़ा पीटते हुए? अरे तुम जैसे औरतों से फ्री होने वाले बहुत से मर्द देखे, खूब जानती हो तुम जैसों को। अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो। परवीन ने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करते दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर आकर वो फूट फूट कर रोने लगी। काश नौशी के अब्बा आज जिंदा होते। किसी माई के लाल की हिम्मत न होती रात के इस पहर इस घर के दरवाजे को बजाने की। परवीन शोहर को याद करती आंसू बहाती रात को बड़ी देर से सोई। अगले दिन भी वो चुपचाप ही थी। तंग आकर नौशी पूछ बैठी, अम्मा लगता है कि आज तुमने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। दुनिया में मुझे 2 ही चीज़ें बड़ी बुरी लगती हैं। एक तो होगी तेरे चेहरे की उदासी और दूसरी तेरी ये खामोशी। नौशी माँ के गले में बाजू डाले बड़े लाड से कह रही थी।
परेशान है तो अपनी इस शेरनी को बता दे। वो इतरा कर बोली तो परवीन उसे समझाने लगी, औरत चाहे खुद को जितना भी महान और तोप चीज समझ ले, मगर रहती वो हमेशा कमजोर हंसती है, समझ ले मेरी बात। परवीन ने हतमी अंदाज में समझाया तो नौशी ने अपना सर पीट लिया। जानती हूँ अम्मा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे तुमने ही समझाया था कि जो औरत अपनी हदूद का ख्याल रखती है उससे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं होता। नौशी ने पुरानी नसीहत याद दिलाई तो परवीन ने उसे प्यार से गले लगा लिया। वो दोनों माँ बेटियां इस तरह एक दूसरे को बहला लिया करती थी। मैं एक बात सोच रही हूँ। परवीन ने तमहीद बांधी तो नौशी मुंतजिर नजरों से माँ को देखने लगी। सुगरा के घर जाऊंगी आज और उससे माजरत करके उसे चौकीदार का रिश्ता देखने चली जाऊंगी जिसका वो बता रही थी। नौशी हैरान परेशान से माँ की बात सुन रही थी। इतनी तंग आ गई है मुझसे? नौशी ने मुंह बिसोरा। तंग नहीं आ गई पागल लड़की, कल को अगर मैं मर मरा गई तो कोई तो तेरा अपना होगा। बस कर दे अम्मा, ये जज्बाती सीन मेरे सामने नहीं चलेगा। इससे पहले कि परवीन कुछ बोलती बाहर दस्तक हुए थे। मैं देखती हूँ कौन आया है, दुआ करो बराबर वालों के घर से बिरयानी आई हो। नौशी कहती उठ खड़ी हुई मगर परवीन ने उसे मना कर दिया। रुक, दरवाज़ा मैं खोलूंगी। परवीन सर पर दुपट्टा सट करके बाहर उठकर जाने लगी। नौशी हैरत से माँ को देख रही थी क्योंकि पहले तो कभी उसने इस तरह दरवाजे पर जाने से मना नहीं किया था, और भला यहाँ आता ही कौन था। लिहाफ सिलवाने के लिए कोई औरत गली में खेलते बच्चों की गेंद उड़कर आती तो वो दरवाज़ा पीटते, या फिर मोहल्ले में कोई अच्छा कुछ पकाता तो सब घरों में बांट कर खाने वालों की दस्तक के अलावा और कोई इस दरवाजे पर नहीं आता था। परवीन ने रात वाली बात बेटी से मुकम्मल तौर पर छुपाई थी। यही वजह थी कि वो दिल ही दिल में अब तक डरी हुई थे, तभी उसे दरवाजे पर न जाने दिया। नौशी भी उठ खड़ी हुई, हैरान हो रही थी कि अंदर आने वाले मेहमानों को देखकर चौंक गई और फिर खुशी के मारे उछल गई। आने वाली का भी यही हाल था। ये उसके कॉलेज की दोस्त रवाहा थी जो पूरे 2 साल बाद उसके सामने मौजूद थी। तुझे मैं याद थी? वो खुशी के मारे बोल नहीं पा रही थी। तो कोई भूलने वाला नमूना थी? रवाहा खिलखिलाकर हंस पड़ी तो दोनों की माएँ भी उन दोनों का पागलपन देखकर हंस पड़ी। परवीन ने दोनों को बड़ी इज्जत से कमरे में बिठाया और नौशी शरबत बनाने के लिए चीनी घोलने लगी। भर के उतारे, आप दोनों, शहर से गांव का सफर अच्छा खासा तवील है, थक गई होंगी दोनों। परवीन ने मेजबानी का हक अदा करते हुए मुस्कुराकर कहा। तुरवाहा की वालदा जो लंबी चौड़ी और बेहद सुर्ख सफ़ेद रंगत वाली खासी खूबसूरत खातून थी, बात करती तो मोतियों जैसे दांत नुमाया होकर उनकी खूबसूरती में इजाफा करते। नौशी बेटे की चेहरे पर खुशी देखकर हमारी तो सारी थकन दूर हो गई है, रवाहा की वालदा राबिया खातून ने मुस्कुराकर कहा तो परवीन भी मुस्कुरा दी। मेहमानों के ठंडे शरबत से तवाज़ो करने के बाद नौशी बिरयानी तैयार करने लगी। रवाहा भी किचन में उसका साथ दे रही थी। दोनों खुशगपियों में मसरूफ़ थीं और कॉलेज की यादों को ताज़ा करके हंस रही थी। खाना खाने के बाद राबिया खातून ने दिल खोल कर खाने की तारीफ की। नौशी के हाथ में तो बहुत जायका है, बहुत अच्छी बच्ची है, जिस घर में जाएगी रोशनी बिखेर देगी। दुआ करें वो दिन भी जल्द आए। परवीन कहे बिना न रह सकी। अरे बहन, बेटियों का वक्त कब पूरा हो जाए पता नहीं चलता। ये तो चिड़िया की मानिद होती है, जैसे ही इनके नसीब का दाना पानी खत्म हो जाता है फौरन लंबी उड़ान भर जाती हैं, पीछे माओ को दिन गिनने के लिए छोड़ जाती हैं। माहौल सोगवार सा हो गया था। खैर, ये रहा तुम्हारा लजीज बिरयानी बनाने का इनाम। राबिया खातून ने बैग से रकम निकालकर नौशी की हथेली पर रख दी। और ये रवाहा की शादी का कार्ड है, आप दोनों ने शादी में शिरकत जरूर करनी है। राबिया ने शादी का कार्ड परवीन को थमाते हुए इसरार किया तो वो मुस्कुरा कर हामी भरने लगी। बेफिक्र रहें, हम दोनों जरूर आएंगी। हाय अम्मा, सच में तुम मुझे शहर लेकर जाओगी? नौशी ने मारे खुशी के बेयकीनी से कहा। और अगर तुम हमेशा के लिए शहर में शिफ्ट हो जाओ तो? रवाहा ने मायने खेजी से कहा तो नौशी हंस पड़ी। ऐसा तो ख्वाब में ही हो सकता है, कुछ ख्वाब हकीकत का रूप भी धार लेते हैं, राबिया खातून ने कहा और अलविदाई अंदाज में उन दोनों से मिलने लगी। एक खूबसूरत और यादगार मुलाकात ख़त्म हुई। वो दोनों शादी में शिरकत करने का वादा लेकर वापस चली गई थी। तूने कभी उनका जिक्र नहीं किया? उनके जाने के बाद परवीन नौशी से पूछ रही थी। रूही की बातें बताती तो थी आपको। रवाहा वही रूही है। नौशी ने हंसकर माँ की मालूमात में इजाफा किया। कल एतवार बाजार का मेला लगेगा, सुबह जल्दी से काम निपटा लेना, खरीदारी के लिए चलेंगे।
रवाहा के लिए तोहफा भी ले लेना। परवीन ने तो जैसे हफ्ते अकलीम की दौलत बेटी को थमा दी थी। हाय सच माँ, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? नौशी खुशी से उछलकर माँ के गले लग गई। परवीन ने जोरदार थप्पड़ लगाकर उसे खुद से दूर किया। हट पीछे, लिहाफ सीने दे मुझे, मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर एक भी फैशन वाला कपड़ा लेने की जिद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वहां जाकर तेरे सर से दुपट्टा ना उतरे। लोग शरीफ और सादा नजर आती बच्चियों को ही पसंद करते हैं, और मेकअप तो हरगिज नहीं करना। नौशी जो नया मेकअप खरीदने का सोच रही थी चिढ़ कर रह गई। इतनी पाबंदियां किस खुशी में? अम्मा, बनाओ सिंगार के मौके कभी कभार तो नसीबों से आते हैं, हो सकता है वहीं जाकर तेरा नसीब खुल जाए। परवीन के कहने पर नौशी हंस पड़ी थी। लो कर लो गल, जो नसीब अपने देश में नहीं खुल सका वो परदेश में क्या खाक खुलेगा। खुशफहमी के शहर से निकल आ मेरी प्यारी माँ, दुनिया में एक इस मसले के अलावा और भी बहुत कुछ है। मुँह अच्छा ना हो तो कम से कम बात अच्छी कर लेनी चाहिए, फिर तैमू तेरे। परवीन गुस्से से कहकर उसे मारने के लिए इर्द-गिर्द कोई चीज देखने लगी तो नौशी खतरा महसूस करके वहां से भाग निकली। झल्ली ना हो तो परवीन मुंह ही मुंह में बड़बड़ा कर रह गई। एतवार के रोज वो दोनों घर का काम जल्दी से निपटाकर खरीदारी के लिए बाजार चली गई। ज्यादातर परवीन खुद ही अकेली बाजार जाकर जरूरत की अशिया खरीद लाती। खास मौकों जैसे ईद, त्योहार और जब नौशी का सामान और ज़रूरत की अशिया लेनी होती तो उसे साथ ले जाती, और ये दिन नौशी के लिए बड़ा खूबसूरत होता। बाजार की रौनकें और नई नई चीज़ें देखना और ख़रीदना उसे बहुत पसंद था। आज भी एक ऐसा ही दिन था। वो बाजार में खुशी खुशी फिरती मुख्तलिफ एशिया को देख कर ख़रीद रही थी। रंग बिरंगी चूड़ियाँ लेकर वो दोनों जैसे ही मुड़ी, एक अजीब शक्ल वाले और छोटे कद के सांवले रंगत वाले आदमी को देखकर परवीन के चेहरे का रंग उड़ा। नौशी के हाथ पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। परवीन उसे लिए आगे बढ़ गई और फिर जल्द ही 2-4 चीज़ें और ख़रीद कर वो दोनों वापस जाने के लिए चलने लगी। परवीन बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, गोया उसके दिल में कोई डर हो। नौशी पूछी बैठी, अम्मा क्या तुम्हें मेरी कोई बात परेशान कर रही है? नहीं तो, परवीन साफ मुकर गई। उस अजीब आदमी को देखकर तुम परेशान क्यों हुई थी? अम्मा क्या तुम उसको जानती हो? नौशी के सवाल करने पर परवीन हंसकर उसे मुतमईन करने लगी। नहीं तो, मैं उसे भला कैसे जानूंगी, मैंने तो खुद पहली बार देखा, मगर वो मुझे शक्ल से कोई जिन लग रहा था। तेरा क्या ख्याल है? परवीन ने बेटी के ख्यालात जानने चाहे। मुझे नहीं मालूम, मगर वो बूढ़ा आदमी अजीब सा तो था, हो सकता है आपका वहम हो। मैंने उसे ठेले वाले को पैसे पकड़ाते देखा। नौशी को याद आया, क्या वाकई? हो सकता है उसने कुछ खरीदा हो। परवीन को हैरत हुई। नहीं नहीं, तुमने देखा नहीं था कि वो तो खाली हाथ था। नौशी ने कहा तो परवीन ने जहन पर जोर डाला तो याद आया कि वाकई उसके तो दोनों हाथ खाली थे। हुलिये से इतना अमीर लगता तो नहीं कि किसी की मदद करे, तो क्या वाकई वो एक जिन है? ये सोचकर परवीन के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। ठहरा कर नौशी नई चीज़ों पर टूट पड़ी और बार बार चीज़ें निकालकर नए सिरे से देख रही थी, जबकि परवीन का दिमाग अब भी उसी बूढ़े जिन में अटका था। कुछ देर आंखें बंद किए लेटी रही और फिर बोल पड़ी, नई चीज़ें देखकर ही पेट भरने का इरादा है या खाना भी लेकर आओगी? उठकर मुंह हाथ धो लो अम्मा, दस्तरखान लगा रही हूँ। नौशी हंसती हुई किचन में चली गई और खाना निकालने लगी जो वो सुबह बना कर गई थी। जल्द ही दोनों की शहर जाने की तैयारी मुकम्मल हो गई। एक रोज वो शहर जाने के लिए रवाना हो गए। रवाहा और उसकी माँ के अलावा शहर में उनका कोई जानने वाला नहीं था, सो वो माँ बेटी सीधा उन्हीं के घर गई। नौशी अरसे बाद घर से निकलकर बड़ी खुशी महसूस कर रही थी। रवाहा और राबिया खातून ने बड़ी खुशदिली से दोनों का इस्तकबाल किया और उन्हें मेहमानों से मिलवाया। उन्हें ऐसे मालूम हुआ कि जैसे उन दोनों का इस खानदान से कोई न कोई खूनी या पुराना ताल्लुक हो। परवीन उस खानदान की मेहमान नवाजी और अखलाक की गर्विदा हो गई थी। माई और मेहंदी में नौशी को बहुत मज़ा आया। उसने उनकी रस्मों को बहुत एंजॉय किया था। इस शादी में वो नित नई रस्में पहली बार देख रही थी और बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। रात गए तक ढोल बजता और बड़ी बड़ी देर तक लड़कियां गाने गाती रक्स करती। नौशी उनके साथ मिलकर ढोल बजाती और माँ से नज़र बचाकर गाना भी गा लेती। रवाहा की कज़न्स और दोस्तों से भी उसकी दोस्ती हो गई थी। उन्हें उसका गाना बहुत पसंद आया था। वो बार बार गाना गाने के लिए इसरार करती और उसकी आवाज़ की तारीफ करती, मगर उसके दिल में माँ का डर भी था। माँ को गुस्सा आया तो घर जाकर उसकी शामत आ जाएगी, सो वो माँ की आंख का इशारा भी अच्छी तरह से समझ रही थी। राबिया के 2 बच्चे थे, रवाहा और अरहम। अरहम एक अच्छी कंपनी में बेहतरीन पोस्ट पर था।
जबकि रवाहा ने ग्रेजुएशन किया था। राबिया मसरूफियत के बावजूद आते जाते परवीन से ढेरों बातें भी कर लेते। परवीन कोई काम करने लगती तो राबिया नरमी से ये कहकर उसे काम से रोक देती कि हमारे यहाँ मेहमानों से काम करवाने का रिवाज नहीं है। परवीन को उनका बड़ा सा पक्का घर बहुत पसंद आया। साफ सुथरा बड़ा सा सहन और बड़े बड़े कमरे, कशादा सा बावर्ची खाना, धूल मिट्टी का ढूंढने से भी कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा घर तो वो तस्वर में ही अपनी बेटी के लिए सोचती थी। नौशी दूसरे कमरे में जहेज के कपड़े जो थोड़े बहुत रह गए थे टांक रही थी। काश मेरी नौशी के नसीब में भी ऐसा घर लिखा हो। परवीन दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। उसी वक्त राबिया उसके करीब आ बैठी। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं बहन? क्यों शर्मिंदा कर रही हैं राबिया बहन? आप जो पूछना चाहती हैं बिला झिझक पूछ सकती हैं। परवीन ने मुस्कुराकर कहा तो राबिया का हौसला बढ़ा। दरअसल मैं नौशी के बारे में पूछना चाह रही हूँ, उसका रिश्ता कहीं तय किया है या नहीं? राबिया के पूछने पर परवीन ने साफ गोही का मुजाहिरा करते हुए कहा, नहीं बहन, रिश्ते तो बहुत आए मगर अब तक किसी रिश्ते पर भी मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। परवीन के कहने पर राबिया के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। और अगर कोई नेक रिश्ता यहाँ मिल जाए तो क्या ख्याल होगा आपका? परवीन इतनी भी ना समझ नहीं थी कि राबिया का इशारा नहीं समझ सकती थी। ये मौका वो भी हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे, सो डके छुपे लफ्जों में अपनी रजामंदी देना जरूरी था। मेरा इरादा तो नहीं था कि अकलौती बेटी को इतने दूर शहर में ब्याहूंगी, मगर यहाँ आकर वो इतनी खुश है कि मुझे अपना ख्याल बदलना पड़ रहा है। परवीन ने ज़रा घुमाकर मगर मुस्बत जवाब दे दिया तो राबिया के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। परवीन अरहम को देख चुकी थी। वो बाअदब और खूबसूरत सा लड़का उसे पहली नज़र में पसंद आया था। मुलाजमा उसे खाने के लिए बुलाने आई तो वो उठकर डाइनिंग रूम में चली गई। बारात वाले दिन नौशी की सादगी और खूबसूरती उसे सबसे नुमायां कर रही थी। सफ़ेद फराक और चूड़ीदार पाजामे में सफ़ेद मोतिये का जेवर पहने, आंखों में काजल की लकीर और घुटनों तक आती चुटिया में उसके सादा चेहरे की मासूमियत इतनी वाज़ेह और खूबसूरत दिखाई देती कि देखने वाला नज़र हटाना भूल जाता। कितनी बार परवीन ने उसकी बलाएं ली थी और राबिया ने गले लगाकर प्यार किया था। वलीमे के बाद उन्होंने इजाज़त चाही तो राबिया ने रोक लिया। रवाहा के मकलावे की दावत के बाद ही आप लोग जाइएगा? वो मोहब्बत भरे अंदाज में दोनों को रोक रही थी। परवीन उनके खुलूस को ठुकरा नहीं सकी। खैर खैरियत से मकलावे का फंक्शन भी ज़हन दिल पर खूबसूरत यादें छोड़कर ख़त्म हुआ और परवीन ने भी जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम अपने अरहम के लिए नौशी का हाथ मांगने आपके दर पर आ सकते हैं सवाली बनकर। राबिया ने परवीन को अकेले देखकर अपने दिल की बात कह दी। परवीन के तो मन की मुराद पूरी हुई थी। उसे तो पहले इस वक्त का इंतज़ार था। फ़ौरन बोली, नौशी मेरी ही नहीं आपकी भी बेटी है। आप जब चाहे आकर बात पक्की कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मैं आपका इंतज़ार करूँगी। परवीन ने रजामंदी जाहिर की तो राबिया ने उसे गले लगा लिया और उसका शुक्रिया अदा किया। नौशी दिल में खूबसूरत और यादगार लम्हात बसाए वापस अपने घर आ गई। उसकी वहाँ बहुत सारी दोस्तें बनी थी जिन्होंने उसे अलविदा नम आँखों से कहा। घर आकर परवीन के चेहरे पर बड़ी चमक थी। नौशी ने न जाने कितने अरसे बाद या शायद पहली बार माँ को इतना खुश और मुतमईन देखा। उन्हीं दिन की बात है कि उनकी पिछली गली में एक मजदूर की बीमार बीवी फोत हो गई थी। पूरा गांव अफसोस के लिए वहां मौजूद था। परवीन भी उनके दुख में बराबर की शरीक हुई। छोटे छोटे बच्चों की माँ की मौत पर हर आंख में दुख था। फीका अपनी बीवी की मौत पर बड़ा दुखी बैठा था। परवीन की नज़रें उस पर थी। बेचारे गरीब ने मेहनत मजदूरी करके बीवी का इलाज करवाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर किसी भी हकीम की दवा से उसे आराम नहीं आया और बेचारे 4 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अकेले मजदूर शोहर पर डालकर खुद मनो मिट्टी तले जा सोई। किसी आदमी ने करीब आकर फीके के हाथ में बहुत सारे नोट थमाकर उसका कंधा थपथपाकर उसे हौसला दिया। परवीन ने उस आदमी की तरफ देखा और उसका चेहरा देखकर जैसे पत्थर की हो गई थी। वो वही बूढ़ा जिन था जिसे वो पहले भी 2 बार देख चुकी थी। वो खामोशी से उसके हाथ में पैसे पकड़ाकर एक लफ्ज़ कहे बगैर वहां से निकल गया। परवीन बेचैन सी हो गई थी और कुछ देर वहां बैठकर उठकर घर वापस आ गई। घर आकर वो लेट गई तो नौशी यही समझी कि माँ को फीके की बीवी के मरने का गम लग गया है, सो वो खामोश रही और कुछ पूछने से गुरेज किया। तो वो उस रात बिल्कुल सच कह रहा था कि वो ज़रूरतमंद लोगों के घर जाकर पैसे बांटता है, उनकी मदद करता है। मैंने उसे कितना गलत समझा।
और उस बेचारे नेक दिल जिनको कितना जलील और रुसवा किया था, तौबा, वो दिल ही दिल में अपने रवैये पर सख्त शर्मिंदा थी। खाना खा ले अम्मा। कुछ देर बाद नौशी ने दस्तरखान बिछाकर माँ को आवाज़ दी तो वो सोचती हुई उठ खड़ी हुई। अब वो घर जाकर पैसे बांटने वाला जिन मिला तो उसे अपने रवैये की माफ़ी ज़रूर मांगोगी, ये सोचकर वो मुतमईन हुई। वो अपने काम में फिर से मसरूफ़ हो गई। नौशी माँ की हर मुमकिन हद तक मदद करती। वो ये बात महसूस करती थी कि माँ अब काम करके जल्द थक जाती है, सो घर के काम के अलावा लिहाफ सीने में उनकी मदद करती। परवीन उसे बगैर कहे काम करता देखती तो दिल ही दिल में उसकी खुशियों भरी ज़िंदगी के लिए दुआ करती। वो दिल ही दिल में राबिया का इंतज़ार कर रही थी और ये इंतज़ार तवील होता जा रहा था। 2 माह इस इंतज़ार में गुजर गए। वो दिल में सोचती कि राबिया बहन ने जमाना नहीं था तो वादा करने की क्या ज़रूरत थी। बिला वजह इंतज़ार की सूली पर चढ़ाए रखा। क्या ज़रूरत थी उम्मीद दिलाने की जब वादा पूरा ही नहीं करना था। एक रोज़ सुगरा खुद ही सब कुछ भुला कर आ गई। ले बहन, तूने तो बुलाना नहीं था या मेरे घर आना मुनासिब नहीं समझा, मगर मैं खुद ही आ गई हूँ बेशरम बनकर। सुगरा ने कहा तो किचन में खड़ी नौशी खी खी करके हंसने लगी और उनके सामने बैठी। परवीन शर्मिंदा सी हो गई। ऐसी बात नहीं है खाला, तुम्हें तो मालूम है कि पहले मैं शहर चली गई थी, पूरे 15 दिन वहाँ लग गए। उसके बाद घर आई तो कई आर्डर पड़े थे और मुकम्मल करने में इतना वक्त लग गया कि क्या बताऊँ। तुम्हें तो पता है कि अब इस जिस्म में पहले वाली ताकत तो नहीं है, जल्द थक जाती हूँ, काम अक्सर अधूरा रह जाता है। नौशी ने चाय की ट्रे लाकर रखी तो सुगरा की उस पर नजर पड़ी तो उसे देखकर काम की बात याद आई। इसके रिश्ते का बता, कहीं बात बनी? नहीं, परवीन ने मायूसी भरे अंदाज से कहा तो सुगरा उसके कान के करीब आकर आहिस्ता आवाज में उसे बताने लगी। मेरी नज़र में एक रिश्ता है, कहे तो बात चला दूंगी। लड़कियां बहुत हैं मगर अल्लाह बख्शे तेरी सास को मेरे साथ बिल्कुल सगी बहनों वाला सलूक करती थी। यही सोच कर तेरे पास आई हूँ, बस जो भी जवाब हो जल्दी बता देना। रिश्ते के बारे में भी कुछ बता दो। परवीन बेचैनी से हंस पड़ी तो सुगरा ने कहा, बताती हूँ। 2 ही भाई हैं, बड़ा आर्मी में है, छोटे का होलसेल मार्केट में चमड़े का कारोबार है। रंग जरा दबता है मगर बहन, मर्द की कमाई देखी जाती है, भला मर्द का रंग रूप कौन देखता है। सुगरा की बात परवीन के दिल को लगी, फौरन हाँ में हाँ मिलाई। बात तो तुम्हारी ठीक है, ऐसा करो आने वाले एतवार को उन लोगों को यहाँ बुला लो, एक बार नौशी को देखकर पसंद कर लें तो बात आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। कुछ देर बैठकर चाय पीने और इधर उधर की बातों के बाद सुगरा उठकर चली गई। परवीन के दिल पर पड़ा बोझ कुछ हल्का हुआ। काम में भी दिल लग रहा था। वो तेजी से लिहाफ सी रही थी कि नौशी को बात याद आई। अम्मा, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, बता दे, क्यों मेरा दिल हौला रही है। परवीन ने कहा तो नौशी हंस पड़ी। कोई परेशानी की बात नहीं अम्मा, कल जब तुम खाला सुरैया के घर गई थी तो डाकिया आया था रूही का खत लेकर। इतनी अहम बात तूने मुझे नहीं बताई, कल मुहैया ना हो तो। अच्छा जल्दी बता खत के अंदर क्या लिखा है, बल्कि उठ और अभी इसी वक्त मुझे पढ़कर सुना। नौशी करीब बैठने की वजह से माँ की धप से महफूज नहीं रह सकी। हाय आए माँ, तेरे पास बैठना ही अजाब है। वो कमर सहलाते हुए दहाई देने लगी। 3 तारीख को रवाहा खाला राबिया के साथ हमारे घर आ रही है, यही बताने के लिए उसने खत लिखा था। क्या वाकई? परवीन अब भी बेयकीन थे। इसमें इतने हैरान परेशान होने वाली क्या बात है? नौशी हंस पड़ी। 3 तारीख कब है? परवीन ने उसके हंसने का कोई नोटिस लिए बगैर सवाल किया। परसों। नौशी सुई में धागा डालते हुए बोली। ओह अच्छा, चल उठ और पर्दे उतार के धोने के लिए भगो, और कालीन को भी उठाकर पानी में डालकर रख दे, ये मैं खुद ही धो लूंगी। परवीन जितना घर को चमकाने के चक्कर में थी, नौशी ने चेहरे पर उतनी ही बेजारी से जाली। क्या हो गया अम्मा, मैं इन कामों में पड़ गई तो तुम्हारे साथ ये लिहाफ कौन बनवाएगा? नौशी ने मिस्कीन से सूरत बनाई मगर परवीन ने उसकी एक नहीं सुनी। अगले 2 दिन में परवीन की सख्ती और निगरानी का नतीजा था कि घर चमक रहा था। छोटे से कच्चे सहन को नौशी ने ऐसा लेप लगाया कि उसके अमवारी पक्के फर्श को भी मात दे रही थी। मसहरी पर हाथ से कढ़ाई की हुई चादर और उसके साथ का दरवाजे पर पर्दा डालने के बाद ऐसी ही मजीद तब्दीलियां करके उन्होंने घर को 4 चांद लगा दिए। 3 तारीख की सुबह को परवीन अपनी तैयारी से मुतमईन थी मगर नौशी अच्छी खासी थक चुकी थी। गो कि परवीन ने उसे बाकायदा रिश्ते के बारे में नहीं बताया था मगर माँ की तैयारियां वो अच्छे से समझ चुकी थी और परवीन के कहने पर अपना सबसे बेहतरीन कॉटन का सूट निकालकर हल्का सा तैयार हो गई। 12 बजे के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वही मेहमान थे जिनका शिद्दत से इंतजार था। इस बार राबिया रवाहा और उसके साथ राबिया की नंद यानी रवाहा की फुप्पी जरिश भी आई थी। वो तीनों मिठाई के टोकरे और तहाइफ से लदी फंदी आई थी।
ज़रिश मिलनसार, हंसने हंसाने वाली खुश मिजाज औरत थी। रवाहा की शादी पर बैरून मुल्क होने की वजह से वो शिरकत नहीं कर सकी। अब पहली बार नौशी को देखा तो पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। चाय और दीगर लवाजमात से इंसाफ करने के बाद राबिया जल्दी अपना मुद्दा बयान करने लगी। बहन परवीन, हम ज़्यादा तकल्लुफ़ में नहीं पड़ेंगे। आपकी तरफ से हाँ है तो आज बात पक्की करके ही वापस जाएंगे। जहेज़ की आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो नौशी बेटी की, जो मुझे यकीन है कि हमारे घर को 4 चांद लगा देगी। राबिया ने इतनी मोहब्बत से कहा कि इतने खुलूस पर परवीन की आंखें नम हो गई। राबिया ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और नौशी की खुशियों भरी जिंदगी की दुआ की। खाने के बाद वो बेहद इसरार पर भी नहीं रुके। उनके जाने के बाद परवीन बेहद गमज़दा थी। पहले बेटी का रिश्ता न होने का दुख था और अब बेटी को रुखसत करने का सोचकर जान निकल रही थी। तेरे बगैर ये घर काट खाने को आएगा मुझे, तेरे बगैर कैसे रहूंगी मेरी बच्ची। परवीन नौशी को गले लगाकर रो रही थी। नौशी के आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज वो दोनों खुलकर रो रही थी, एक दूसरे को तसल्ली दे रही थी और ना ही हौसला बढ़ा रही थी, क्योंकि दोनों ही एक अलग फेज से गुजर रही थी। अम्मा, मैं तुझे शहर अपने साथ लेकर जाऊंगी, वरना मैं कहीं नहीं जाने वाली। नौशी ने अपनी आंखें साफ करते हुए मजबूत लहजे से कहा तो परवीन ठंडे सांस भर कर रह गई और बोली, बेटियां पराया धन होती हैं मेरी जान। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ब्याह दिया तो बस पराई हो गई। और बताओ भला, कभी कोई पराए लोगों के साथ भी रहा क्या? राबिया के समझाने पर नौशी ने मुंह बनाया। इसे सदियों पुरानी सोच को गलत साबित नहीं किया तो मेरा नाम भी नौशी नहीं। चाहे जो मर्जी नाम रख ले, मगर ये पुराने रिवाज कभी नहीं बदलेंगे, ना ही लोगों के ख्यालात। राबिया ने साफ गोही से कहा। अगले 3 दिन राबिया ने खाला सुगरा के घर जाकर उसे नौशी के रिश्ते की सारी बात बता दी। उसने भी मिठाई खाकर मुंह मीठा किया और दिल से उनकी खुशी में खुश हुई। नौशी की बात पक्की होने की मिठाई आधे गांव में तकसीम हो चुकी थी और अब मुबारकबाद देने के लिए लोगों के आने का सिलसिला जारी था। पुराना दौर था, इंटरनेट और मोबाइल से दूर लोग उसी तरह एक दूसरे के गम और छोटी छोटी खुशियों में बराबर के शरीक होते हैं। 3 दिन तक रात गए तक मोहल्ले की लड़कियों ने ढोलकी रखकर नौशी की बात तय होने की खुशी मनाई। एक रोज परवीन ने संदूक से एक पुरानी पोटली निकाली और उसके अंदर रखा जेवर निकाल कर देखने लगी। उस जेवर से उसकी बड़ी यादें जुड़ी थी। ये उसकी माँ का दिया हुआ जेवर था, जो उसने माँ की निशानी के तौर पर बड़े संभाल कर रखा था। मगर अब वो वक्त आ चुका था कि उस निशानी को आखिरी बार सीने से लगाकर उस पर फातिहा पढ़ ली जाती। सो वो उसे बड़े गौर से देखती हुई छू रही थी। अगले रोज वो गांव की मशहूर वाहिद और काबिल भरोसा सुनार आरिफ को जेवर बेच आई। दिल दुखी जरूर हुआ था, मगर बेटी की खुशियों के लिए वो उससे बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार थी। उसके साथ ही मोहल्ले का दर्जी न्याज, जो उसका मुंह बोला बेटा बना था, उसे अपने साथ ले जाकर फर्नीचर और कुछ ज़रूरी एशिया बनाने का ऑर्डर दे आई। नौशी की शादी के ढेर सारे कपड़े उसकी पसंद से उसे दिलाए। नौशी जो आम दिनों में माँ की मिन्नत तरले करके बाजार जाती थी, अब माँ की जुदाई और घर से दूर जाने का एहसास इतना दिल पर हावी था कि नई चीज़ें और खूबसूरत कपड़े खरीदने से भी वो खुश नहीं हो रही थी। राबिया उसे बहलाने की बड़ी कोशिश करती, मगर उसकी हर कोशिश बेकार जाती। मैं शहर जाते ही सबसे पहले तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी माँ। उसकी बस एक ही रट थी, बाद में देखी जाएगी, अभी तो अपनी शादी की तैयारी कर और रंगो रूप पर तवज्जो दे। परवीन उसे चुप करवा देती। वो भी ऐसा ही एक दिन था। परवीन बड़ी मार्केट से खुशी से नौशी के जहेज का कुछ सामान लेकर आई थी, जिसकी वजह से वो खासी थकी हुई थी, इसलिए रात का खाना खाकर जल्द ही सो गई। दरवाजे की बड़ी कुंडी लगाई और दोनों लेट गई। थकन की वजह से परवीन जल्द ही गहरी नींद सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब नौशी ने माँ को हिलाकर जगाया। कमरे के बाहर से गैर मामूली आवाज़ें आ रही थी। बारी बारी 2-3 बंदे सहन में कूदे थे। उनके जूतों की आवाज़ सुनकर परवीन दिल थाम कर रह गई। नौशी का भी घबराहट के मारे बुरा हाल था। इससे पहले कि वो कुछ सोचती या अपने बचाव के लिए इंतज़ाम करती, 3 नकाबपोश दरवाजे को धकेल कर कमरे में दाखिल हुए और उन पर बंदूक तान कर खड़े हो गए। देख बूढ़ी अम्मा, जो कुछ भी है सब हमारे हवाले कर दे। किसी किस्म की होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसे अभी गोलियों से भून डालेंगे। बंदूक का रुख नौशी की तरफ करके उनमें से एक बोला था। परवीन डरते हुए सारे पैसे जो उसकी उम्र भर की कमाई थी और लाखों के हिसाब से थे, उसने अपनी ज़रूरियात और बेटी की ख्वाहिशात को दबाकर 1-1 रुपया जमा किया था, जो अब उन जालिमों के हवाले करना पड़ रहा था। जो जेवर बनवाया है वो भी हवाले कर दो।
पैसे बैग में रखने के बाद उनमें से एक बोला तो परवीन मरियल अंदाज में जेवर वाला छोटा सा संदूक निकाल कर लाई और उसके अंदर से सारे जेवर जो नौशी को शादी पर देने के लिए नए और खूबसूरत डिज़ाइन ऑर्डर पर तैयार करवाए थे सब उन जालिम डाकुओं के हवाले कर दिए। वो सब समेट कर मिनटों में चलते बने। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ अम्मा? नौशी सिसकियाँ लेती रो रही थी जबकि परवीन पर सख्ता तारी था। वो इतनी आसानी से कैसे उसकी उम्र भर की जमा पूंजी लेकर जा सकता था? इस हकीकत को मानना तो दूर की बात थी, उस वक्त समझना ही बड़ा मुश्किल था। दोनों माँ बेटियां देर तक इसी तरह लुटी पुटी सी बैठी रही। काफ़ी देर बाद नौशी ने उठकर दरवाज़ा बंद करके मरियल हाथों से कुंडी लगाई। दीवार फलांग कर आने वालों ने वापस जाने के लिए दरवाजे का इंतखाब किया और दरवाज़ा चौपट खोल कर चले गए। अगला दिन बड़ा क़यामत खेज था, दुख से भरा और फिक्र से लिपटा। ये दिन हौलनाक सा था। परवीन को बेटी की शादी कैसे होगी, ये गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जबकि नौशी को माँ की उम्र भर की कमाई लुट जाने का सोग चैन नहीं लेने दे रहा था। सोग के लिए आने वालों के अलग सवाल जवाब थे। खैर, यह दिन बड़ा ही अजियतनाक था। वो रात को जल्द सोने के लिए लेट गई थी। नौशी थकन की वजह से जल्दी सो गई, मगर परवीन की आंखों से नींद कोसों दूर थे। वो आंखें बंद करके सोने की लाख कोशिश करती, मगर नींद नहीं आना था सो ना आई। रात धीरे धीरे सिरक रही थी। दस्तक की आवाज़ सुनकर परवीन चौंक गई। आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। आने वाला ढीठ बना मुसलसल दरवाज़ा बजा रहा था। परवीन उठी और सहन में आकर दरवाज़ा खोले बगैर बुलंद आवाज़ में बोली, अब यहाँ क्या लेने आए हो? हमारे पास गंवाने के लिए कोई रुपया पैसा या जेवर नहीं बचा, लिहाजा जिस तरह से आए उसी तरह वापस लौट जाओ। यहाँ तुम्हें एक बेबस माँ की फरियाद और उसकी बदनसीब बेटी की बेबसी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। परवीन रो पड़ी थी। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए परवीन बहन। दरवाजे की दूसरी जानिब से आने वाली आवाज़ सुनकर परवीन चौंक गई। ये आवाज़ वो पहले भी सुन चुकी थी, मगर कहाँ, ये याद करना मुश्किल था। दरवाज़ा खोलो परवीन बहन, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। आवाज़ दोबारा सुनाई दी तो परवीन इस बार चौंक गई। उसे अच्छी तरह से याद आ गया था कि यह आवाज़ किसकी है और उसने कब सुनी थी। शर्मिंदगी की एक लहर उसके दिल में उठी और वह अगले ही लम्हे दरवाज़ा खोल गई। वो बूढ़ा जिन अपने उसी पुराने हुलिये में हजार हजार के नोटों की एक बड़ी सी गड्डी हाथ में पकड़े मुअद्दब सा खड़ा था। हम तुम्हारे दुख पर परेशान हैं। तभी जिंदगी में पहली बार एक दरवाजे से इनकार मिलने के बाद भी उसी दरवाजे पर वापस लौट आए हैं। मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दें और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मेरी मदद की जाए। आप ये पैसे वापस ले जाएं। आज आपको बहन कहा है, सो आज के दिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो हम अदा करके ही जाएंगे। उसने वो नोटों की गड्डी परवीन के हाथ में थमाई और उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखने के बाद अगले ही पल वो परवीन की नज़रों से ओझल हो चुका था। परवीन हक्का बक्का खड़ी रह गई। वो अंदर आ गई थी और एहतियात से उस रकम को बिस्तर के नीचे छुपा दिया। अगले दिन सुबह को नौशी माँ का बेफिक्रा चेहरा देखकर हैरान हुई। क्या बात है माँ, कहीं उस हादसे के सदमे ने तुम्हारे दिमाग पर तो असर नहीं कर दिया? नौशी माँ को बेफिक्री से नाश्ता करते देखकर बोली। तू भी फिक्र न कर, हमारा मसला हल हो गया है। परवीन ने मुस्कुरा कर कहा तो नौशी हंस पड़ी और बोली, क्या हो गया है अम्मा? रातों रात कारून का खजाना हाथ तो नहीं लग गया? लगता है तुम्हारे जहन पर काफ़ी असर पड़ा है। अम्मा, आज ही हम नफ्सियात के डॉक्टर के पास चलेंगे। परवीन बेटी की बात पर हंसते हुए उठी और अपने बिस्तर के नीचे से नोटों की गड्डी निकाल लाई तो नौशी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। फिर परवीन ने उसे बूढ़े नेक जिन के बारे में पूरी बात बताई कि किस तरह से वो लोगों की मदद करता है। अगले दिन वो दोनों फिर से शादी की तैयारियों में मगन हो गई, यूं जैसे वो डाकुओं वाली रात उनकी ज़िंदगी में आई ही ना हो। वो ये गहरा सदमा इतनी जल्दी भूल जाएंगे उन्हें अंदाज़ा नहीं था। नौशी आने वाली ज़िंदगी के खूबसूरत ख्वाब से जाने लगी। वो दिन भी आ गया जब नौशी माँ को उदास और रोता छोड़कर पिया दे सुधार गई। राबिया ने भी अपनी तरफ से शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और वह अपनी सबसे गहरी सहेली को भाभी के रूप में देखकर बेपनाह खुश थी और अरहम माँ की पसंद को अब अपनी मोहब्बत का मान दे चुका था। वो सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर परवीन दिन गिन गिन कर बेटी का इंतज़ार करती और उसकी राह देखती। एक रोज़ उसके घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। परवीन हैरान सी गाड़ी की आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकल आई। शहर से नौशी बेगम ने गाड़ी भेजी है, आप अपने सामान के साथ हमारे साथ चलें।
انہوں نے آپ کو وہاں رہنے کے لیے بلایا ہے۔ ڈرائیور نے پروین کو بیٹی کا پیغام دیا اور اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اپنی دھن کی پکی نکلی، ماں کو ساتھ رکھ کر ہی دم لے گی، جھلی نہ ہو تو۔ پروین دل ہی دل میں یہ سوچتی ہوئی مسکراتی ہوئی اپنا سامان لینے کے لیے گھر کے اندر چلی گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔